into God's word this morning. आज की सुबह परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे। My topic this morning is called the principle of honor. और मेरा आज का संदेश का विषय है सम्मान का सिद्धांत। The principle of honor. और सम्मान का सिद्धांत। Now, if we look at the word honor in the Bible, और यदि हम बाइबल में सम्मान ये शब्द को देखें तो, especially in the King James version, और खास तौर से किंग जेम्स वर्जन में देखें तो, this word appears 146 times in the Bible. और ये शब्द जो है बाइबल में 146 बार आता है। So, in other words, this is a word that the Bible uses very frequently. और दूसरे शब्दों में कहे तो कि ये शब्द का इस्तेमाल बाइबल में बहुत बार होता है। In the Hebrew version of the Bible, और बाइबल के इब्रानी वर्जन में there are two words that talk about the word honor. और दो शब्द है जो सम्मान को दर्शाते हैं। One is the word yekar, और पहला शब्द है येकार, and the other is the word kabed. और दूसरा शब्द है काबेद। The word yekar, जो शब्द है येकार, it means to be loftily exalted, और उसका अर्थ है बहुत ही अद्भुत रीति से ऊंचा and it's उठाया used जाना। in context of a king. और वो एक राजा के संदर्भ में इस्तेमाल किया But the जाता है। word kabed, परंतु शब्द काबेद जो है, that talks about honor, that also comes very similar to the word kabod, which talks about glory. और वो काबोद इस शब्द से भी मायने रखता है जिसका अर्थ है महिमा। The word kabed says to extol, to glorify. और काबेद का अर्थ है महिमा देना। So in other words, these are very, very lofty words that the Bible is talking और about. दूसरे अर्थ में देखेंगे कि ये वो शब्द है जो बाइबल में हमें इस्तेमाल किए So हैं। what do you mean by honor, and what does honor mean for a Christian? और सम्मान का अर्थ क्या है और सम्मान एक मसीह के लिए क्या है? We need to understand that in God's plan for us, और हमें समझना है कि परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, not only are we called to live a life that is worthy of His calling, और केवल हमें उसके बुलाहट के योग्य जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, but we are also called to honor God in everything that we do. परंतु हमें इसीलिए भी बुलाया है कि जो कुछ हम करें उसमें हम परमेश्वर का सम्मान करें। See, the Bible says बाइबल कहती है that we are God's workmanship, और हम परमेश्वर के संगे सहिती है। that we are created by God for God's work. परमेश्वर ने हमारी रचना की है उसके कामों के द्वारा। Very often we assume that our place on earth is to achieve something that the world will remember us by. और कई बार हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर जो हमारा स्थान है हमें कुछ पाना है ताकि संसार हमें हमेशा याद रखे। Can we be honest this morning? Can I see how many honest people are here in this place? क्या मैं देख सकता हूँ इस स्थान में कितने ईमानदार लोग हैं? How many of you want to be remembered by the world long after you are gone? Be और आप honest. में से कितने लोग हैं जो आपके जाने के बाद भी पूरे संसार में जाने जाना चाहते हैं? Okay, that's almost everyone. सभी लोग हैं। Can I give you the alternative? इसका विपरीत चीज मैं आपको दूं? Would you rather be remembered by the world, or would you rather be remembered by heaven? क्या आप संसार से स्मरण रखना चाहते हैं या आप स्वर्ग से याद रखे जाना चाहते You हैं? know, because the Bible says that friendship with the world is enmity with God. क्योंकि बाइबल कहती है संसार के साथ मित्रता परमेश्वर से बैर So है। if you are remembered by the world for something you have done, you are doing something wrong. तो यदि आप संसार में जाने जाते हैं आपके कार्यों के लिए तो आपने कुछ गलत किया है। So remember that, see, our standards are very different than the world's standards. तो याद रखें कि हमारे ओहदे जो है वो संसार के ओहदों से अलग है। That being said, this is a church that believes in honor, by the way. और इसका ये बात नहीं है, कलीसिया जो है सम्मान में भरोसा रखती है। This church believes in honor. इस कलीसिया जो है सम्मान पर भरोसा रखती है। We honor God. हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। We honor men and women of God. हम परमेश्वर के दास दासी का We सम्मान honor करते हैं। those who carry the gifts and the fruit of the Spirit. और जो आत्मा के फल लिए चलते हैं हम उनका भी सम्मान This is करते a हैं। church that believes in the fivefold ministry. ये कलीसिया वो है जो 5 पदरी सेवा में भरोसा This is करती a है। church that aim is to ensure that the word of God is preached to the ends of the earth. और ये वो कलीसिया है जो देखती है कि संसार के छोर तक परमेश्वर का वचन बांटा So जाए। this is a church that believes in honoring God. और ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर का सम्मान You know, the करने पर Bible करती है। also tells us in the Bible it's also written that we are called to honor our parents. और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। If you notice the scripture, nowhere from Genesis to Revelation does it say love your parents. और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं लिखा कि तुम अपने माता पिता से प्रेम करो, But it says honor your parents. परंतु वहां पर लिखा है कि तुम उनका Because सम्मान that is करो, the first commandment that carries a blessing.
क्योंकि ये पहली आज्ञा है जिसमें आशीष है। So let's get into a quick study of the word honor and the principle of honor this morning. जल्दी से हम देखेंगे सम्मान और सम्मान के सिद्धांत। So when we look at what scripture says, जब हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है, there are two types of honor that the Bible describes. दो तरह के सम्मान है जो बाइबल में बताए गए हैं। One, पहला, the honor that we give God वह सम्मान जो हम परमेश्वर को देते हैं because He alone is worthy, क्योंकि केवल वही योग्य He है, alone is majestic, क्योंकि वही महान He है। alone is worthy of all praise and power and dominion. सारी स्तुति, आराधना, महिमा के योग्य So that वो is है। honor that we give God because God is worthy of honor. ये वो सम्मान है जो हम परमेश्वर को देते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है। But there is also another honor that the Bible calls us to give people. परंतु दूसरा भी सम्मान है जो बाइबल कहती है लोगों को देने का। So when we look at scripture, scripture divides honor into God given honor or honor that we give to God and honor that we can give to a human being. और जब हम देखते हैं बाइबल बताती है हमें दो सम्मान के बारे में जो हम परमेश्वर को देते हैं और जो हम लोगों को देते हैं। I'm going to be speaking of just 3 points this morning. और केवल 3 मुद्दों पर मैं बात कहूंगा। And I like to speak in points because it helps us remember the message. और मैं मुद्दों में बात करना मुझे पसंद है क्योंकि इससे हमें संदेश याद रहता So है। what we're going to see is how does one gain honor? तो हम देखेंगे कि कैसे सम्मान को हम प्राप्त करते हैं। What are the principles behind it? सम्मान के सिद्धांत क्या हैं? How do you lose honor? आप सम्मान कैसे गवाते हैं? And we will see something that will actually destroy the honor that God has kept for you. और हम देखेंगे उस सम्मान को जो नाश करेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे। So are you ready? तो क्या आप तैयार हैं? No, Lord, I need a little more enthusiasm in this place. और इस स्थान में ज्यादा उत्साहन की जरूरत है। Gaurav is very excited. So I honor Gaurav for his excitement. तो गौरव का सम्मान करते हैं उससे उत्साहन के लिए। Are you ready to get into God's word this morning? तैयार है परमेश्वर के वचन में बढ़ने के The लिए। first point that I want to talk about is honor requires you to give something. और हम पहला मुद्दा जो देखेंगे कि सम्मान को जरूरत है आपको कुछ कीमत देने की। You know, when you honor someone, जब हम किसी का सम्मान करते हैं it requires you to give them something. तो ये इसकी जरूरत है कि हम उन्हें कुछ दे। It is God's principle that honor will always cost you. तो ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि जो सम्मान है उसकी कीमत होती है। Honor doesn't come cheap. और सम्मान जो है वो हल्के में से Honor doesn't come easy. सम्मान आसानी से नहीं आता। Honor requires you to do something. सम्मान चाहता है कि आप कुछ करें। Honor requires you to give something. सम्मान चाहता है कि आप कुछ दे। There cannot be honor if you do not give. सम्मान नहीं हो सकता यदि आप कोई कीमत ना चुकाएं। Now some of you may say, okay, आप में से कुछ कहेंगे ठीक है। here comes another prosperity gospel. और दूसरी ही बढ़ोतरी की सुसमाचार है। But you're absolutely wrong. I'm only going to be using scripture to show you this. और मैं आपको वचन के द्वारा ये दर्शाऊंगा। You know, in the book of Proverbs 3 verse 9, और नीति वचन 3:9 में हम देखते हैं the Bible tells us to honor the Lord with our wealth and with the first fruits of all our produce. बाइबल हमें बताती है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करें। In other words, it tells us that giving to God is a form of honor that we do to Him. और दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि परमेश्वर को देना मतलब उसका सम्मान करना है। But what exactly honors God? परंतु क्या परमेश्वर का सम्मान करता है? Is it the fact that you give to Him? क्या ये सच्चाई है कि जब आप उसे देते हैं? Is God honored with your leftovers? क्या परमेश्वर आपके बच्चे कुछ से सम्मानित होता है? Is God honored by what you bring to Him after you have used up all the other resources? जो चीजें आपने इस्तेमाल कर ली उसके बाद जो बची है उन चीजों से क्या परमेश्वर सम्मानित होता है? Proverbs 3:9 says, "Bring the first fruit of everything you have to God." और नीति वचन 3:9 में कहा है कि जो कुछ आपके पास है उसकी पहली उपज आप परमेश्वर के पास लेकर You know, when आए। you bring the first fruit, it means that you are sacrificing something. और जब आप पहला उत्तम फल लेकर आते हैं इसका अर्थ यह है कि आप किस चीजों का बलिदान कर You रहे are हैं। setting aside something for God. आप कुछ तो परमेश्वर के लिए से अलग कर रख रहे See, हैं। God is not interested in your leftovers. और परमेश्वर आपके बच्चे कुछ ही चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता। God is not interested in what you bring after all your needs have been met. और जब आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाए जो उसमें से बचे परमेश्वर उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। God is looking at people who will tell God, I honor you with everything that I have. और परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जो कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपनी सारी चीजों से तेरा सम्मान करता हूँ। It is very easy to say you honor someone और ये बहुत आसान है कि हम कहते हैं कि हम आपका सम्मान करते because हैं words are cheap.
क्योंकि जो शब्द है वो बहुत ही हल्के हैं Words are free. और शब्द बहुत ही फ्री हैं। I can say it's night now, और मैं कह सकता हूँ कि अभी रात है, but that doesn't necessarily mean it's true. परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये सत्य है। But the minute I have to actually put an action to my word, और जिस क्षण मुझे मेरे शब्दों में क्रिया को लाना है, that is when it costs me something. और वही क्षण है जब मुझे एक कीमत देनी पड़ती So है। how exactly do you honor God by your giving? और किस तरह से हम अपने देने से परमेश्वर का सम्मान करते हैं? When we look at the story of Cain and Abel, जब हम कैन और हाबिल की कहानी को and this देखते हैं, story is found in Genesis chapter 4. I want you to read this once you go home. और जब आप घर जाए तो उत्पत्ति 4 के अध्याय को आप पढ़े। Just 2 verses, Genesis 4 verses 3 and 4. केवल 2 वचन, उत्पत्ति 4 का चौथा वचन। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है that one day एक दिन 2 brothers, 2 भाई Cain and Abel, कैन और हाबिल came before God परमेश्वर के सम्मुख आए and they brought an offering to him. और उन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। Cain brought of vegetables and plants because he was a farmer, और कैन किसान होने के नाते वो फल और सब्जियों को लेकर आया, but Abel brought the firstborn of all the flock that he had. परंतु हाबिल जो उसके पास सब भेड़ बकरियां थी उसके पहले लोटे को वो लेकर And if आया। you read this chapter, और जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, the Bible says that God rejected Cain's offering, but he accepted Abel's offering. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कैन के जो भेंट है उसको नकारा, परंतु हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। Why was this? ऐसा क्यों हुआ? Was it because God did not want vegetables? और ऐसा था क्योंकि परमेश्वर को फल सब्जी नहीं चाहिए, इस कारण? Absolutely not. ऐसा बिल्कुल नहीं है। It was because Abel brought what was the finest to God. और ये इस कारण हुआ क्योंकि हाबिल ने अपना उत्तम परमेश्वर के पास See, लेकर आया। only in verse 4 does it say that Abel brought the first and the finest of all his flock. और चौथे वचन में हम देखते हैं कि हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के सबसे उत्तम और पहला लोटा लेकर आया। But the word first and finest is not mentioned in verse 3 when it describes Cain's offering. और परंतु तीसरी आयत में जब हम देखते हैं जब कैन के भेंट के बारे में बताया तो उसमें उत्तम भेंट की So अर्थ नहीं in है। other words, even the Bible records that Cain brought what was left over. तो बाइबल भी हमें बताती है कि कैन ने जो है बचा कुचा वो He लेकर didn't आया take aside and give to God what was first. और उसने अलग रखकर परमेश्वर के लिए पहली भेंट नहीं लाई, And both gave, और दोनों ने दिया, but one gave with honor. परंतु एक ने सम्मान के साथ दिया, Because he knew that what he's giving is not to a man. क्योंकि वो जानता था कि वो जो दे रहा है वो मनुष्य को नहीं दे रहा, He knew that he is giving to a God who has created the sun, the moon, the stars. और वो जानता था कि वो उस परमेश्वर को दे रहा है जिसने सूर्य चंद्रमा तारे की रचना की And है। because he honored God, God honored Abel. और उसने परमेश्वर का सम्मान किया, इसी कारण परमेश्वर ने भी हाबिल का सम्मान When you किया। honor God with your giving, जब आप परमेश्वर को अपने देने से सम्मानित करते हैं, God will honor you. परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। See, I'll also tell you another story. एक दूसरी कहानी भी आपको We all know बताऊंगी। the story of the widow and her 2 mites. और अब विधवा और उसके 2 सिक्के की कहानी भी हमें पता है। When we study the temple, जब हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, we've read the story many times, but oftentimes we don't stop to read it well. और हमने कई बार वो कहानी पढ़ी है, परंतु बहुत बार हम अच्छे से उसको नहीं पढ़ते। It says that Jesus was one day sitting with his disciples in the temple. और ऐसा कहा है कि मंदिर में एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ में बैठा हुआ And था, people are walking over in the temple और लोग मंदिर में आ रहे थे and they're putting their coins in और वो अपनी भेंट दे रहे थे, and they're all putting from what they have. और जो कुछ उनके पास है उसमें से वो दे रहे थे। You know, and the way the temple was designed और मंदिर की रचना जिस रूप से की गई थी, was that as soon as coins fell in, they would make a loud sound as they went down. और जैसे ही सिक्के उस बर्तन में गिरते थे तो बड़ी गूंज जैसे होती थी। So when the rich put their offering in, और जब अमीर लोग अपनी भेंट चढ़ाते थे, it just made a loud sound and everyone knew that अरे इतना बड़ा ऑफरिंग दिया है ऐसे परमेश्वर बड़ी को. गूंज होती थी और वो जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ा भेंट परमेश्वर को दिया है। Can you imagine this? Does this happen in our world today? क्या आप कल्पना करते हैं कि हमारे संसार में Some of ऐसा you are होता saying है? no. Praise God for your world. और धन्यवाद आपके संसार के लिए। But it happens in our world as well. और हमारे संसार में भी ऐसा होता है। You know, when oftentimes when people look at someone, oh, they can afford to give God. They have so much. और कई बार सोचते हैं कि हाँ वो उनके पास बहुत कुछ है, वो परमेश्वर को दे सकते They हैं। can really give God. They have too much. I don't need to give. और उनके पास बहुत कुछ है, वो परमेश्वर को दे सकते हैं। But मेरे you know पास what the नहीं। Bible says? परंतु बाइबल क्या कहती है? Jesus was watching a widow. यीशु वो विधवा को देख रहा था And one widow came. और एक विधवा आई And she just had 2
small coins. और उसके पास केवल 2 छोटे सिक्के थे And she took those 2 coins and she put it in. और उसने वो 2 सिक्के लिए और उसमें डाल दिए। Imagine this scenario. और कल्पना कीजिए इस दृश्य को। When the rich are putting, there's a loud sound. जब रईस लोग डालते हैं तो बड़ी गूंज होती है, But when the widow put, maybe no one knew that she has put something. परंतु जब विधवा ने डाला तो शायद किसी ने जाना ही नहीं कि उसने कुछ डाला है। When she did that, जब उसने वो किया, there was no sound that came. वो कोई आवाज वहां पर नहीं But there was a cry from her heart that caught the attention of Jesus. परंतु उसके हृदय की जो रूह है उसने यीशु को ध्यान यहाँ पर बटोरा। As I was preparing this word, जैसे इस संदेश को मैं तैयार कर the रहा Lord था, brought to my mind, प्रभु ने मेरे स्मरण में लाया, do not get taken aback by the flashiness of someone else's giving. और दूसरों के देने से आप प्रभावित ना हो, Do not get taken aback by the flashiness of someone else's और giving. दूसरों के देने से आप पीछे ना हटे। Remember that God is looking at your heart as you give. और स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है जब आप देते हैं। You know, the flashiness, the sounds did not move Jesus. और वो जो गूंज है उसने यीशु को नहीं हिलाया। It was that widow who put all she had that caught the attention of the Son of और God. वो विधवा है जिसने अपना सब कुछ दिया, उसने परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर लिया। God is not impressed with our money. परमेश्वर हमारे पैसों से प्रभावित नहीं होते, He's absolutely not impressed. और बिल्कुल खुश नहीं होते। How much money do you have? कितने पैसे आपके पास है? Lots? बहुत कुछ, Maybe a truckload? और एक शायद ट्रक भरकर, Maybe 2 truckloads? शायद 2 ट्रक भरकर, Maybe 3 truckloads? शायद 3 ट्रक भरकर। इससे ज़्यादा है then the IT department comes. Okay, so let's assume that you have paid all your taxes because the Bible tells us give to Caesar what belongs to Caesar. कल्पना करते हैं कि आपने अपना सब कर दिया क्योंकि बाइबल कहती है कि कैसर को वो दो जो उसका है। See, God is not impressed by your money. परमेश्वर आपके पैसों से प्रभावित नहीं है। In fact, I'll also tell you, God doesn't need your money. परमेश्वर आपके पैसे की जरूरत नहीं है। He doesn't need it. Some of us, we need to get this concept out of our head that we come to church because God needs our money. और हम में से कुछ लोगों को ये जो विचार है अपने दिमाग से निकालना है कि हम कलीसिया आते हैं क्योंकि परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत है। God created the sun, the moon, the stars. परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारों का निर्माण The Bible किया। says that the cattle on 1,000 hill belongs to God. और परमेश्वर कहता है कि सारी भेड़ बकरियां जो है वो परमेश्वर की The है। book of Revelation records that the streets in heaven are made of gold. और प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि स्वर्ग के जो रास्ते हैं वो सोने से बने हैं। जिसके घर में गोल्ड डस्ट है, he doesn't need your money. You're understanding what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? When he walks, there's dust of gold. और जब परमेश्वर चलते हैं वहां पर सोने की धूल मिट्टी होती है। Revelation records that God is seated in the heavens and there are so many jewels around. और बाइबल में कहा गया है प्रकाशित वाक्य में कि जहां परमेश्वर का सिंहासन है उसके आजू बाजू में बहुत सारे खजाने हैं। His kingdom is not affected by inflation or recession. और उसके राज्य में कोई महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। His kingdom is not affected by whether there's a war in the world somewhere. और उसके राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर युद्ध चल रहा है। Petrol prices don't affect him. और पेट्रोल की कीमत जो है उसके राज्य पर प्रभाव नहीं डालती। All that affects us. और वो सब चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं। God is not affected. परमेश्वर उनसे प्रभावित नहीं है। God doesn't need it. परमेश्वर की जरूरत नहीं है। But we still give. फिर भी हम देते हैं। Why? क्यों? Because we tell God, you have given me everything. क्योंकि हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ दिया And है। from that, I just want to show you what you mean to me. और उसमें से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। One of the ways that you can show someone that you love them is to give them something. और एक तरीके जिससे आप दर्शाए कि आप दूसरे से प्रेम करते हैं कि आपके देने के द्वारा। And it's not just money. और केवल पैसा नहीं, It's your time. वो आपका समय है, It's your attention. वो आपका ध्यान है, It's the fact that you want to spend some time और with ये them. सच्चाई है कि आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। Whenever we look at scripture, जब कभी हम वचन को देखते हैं, God has always honored people who give to him. और परमेश्वर ने उन लोगों का सम्मान किया है जो लोग उसे देते हैं। Even in the story of King David, और दाऊद राजा की कहानी भी देखें तो how many of you know David? कितने लोग दाऊद को जानते हैं? 1, 2. Some of you need to read your Bibles. How many of you know David? कितने लोग दाऊद राजा को जानते Everyone? हैं? सब लोग। What set David apart? और दाऊद को क्या ऐसे अलग रख दिया?
It wasn't the fact that he killed Goliath. और ये वो सच्चाई नहीं कि उसने गोलैत को मारा, It wasn't the fact that he was one of the mightiest kings who ever lived on earth. और वो इस पृथ्वी का सबसे महान राजा ऐसा था इस कारण नहीं। What set him apart is that God testified about him. और दाऊद को ऐसे अलग क्यों रखा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी। There were many kings, बहुत से राजा थे, yet David was the one who caught heaven's attention. फिर भी दाऊद राजा ने जो है वो स्वर्ग का ध्यान अपनी ओर लिया। God looked at him and said, you know, that man is a man after my own heart. और परमेश्वर ने दाऊद की ओर देखकर कहा कि वो मनुष्य मेरे हृदय के नजदीक है, That man understands how I operate. और वो मनुष्य जानता है कि किस रीति से मैं कार्य करता हूँ। And there's a very interesting story. और बहुत दिलचस्प कहानी है। It's a story found in 2 Samuel chapter 6. दूसरे शमूएल 6वें I'll अध्याय put up में some देखें। verses on the screen. और कुछ वचन आयत जो है वो But I'll स्क्रीन give पर you है। some context. परंतु कुछ संदर्भ में आपको दूंगा। The Bible tells us that the Ark of God's covenant had been away from the city of David for a very long time. और बाइबल बताती है कि दाऊद के शहर से जो है परमेश्वर की वाचा का संदूक कुछ क्षण तो बाहर दूर था, There was an attempt to bring it back, और उसने एक ऐसा कदम लिया था उसके दोबारा लाने का, but because someone violated God's command and tried to touch it, that person was killed. क्योंकि किसी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसे स्पर्श किया तो वो मृत्यु के घाट उतार दिया गया। So the Ark of the Covenant does not come back to the city of David, but it's taken to the house of Obed-Edom. और जो वाचा का संदूक है वो दाऊद के घराने में नहीं आया, परंतु ओबेद-एदोम के घर में वो गया। And the Bible records that God blessed Obed-Edom because the Ark of the Covenant was with him. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ओबेद-एदोम के घराने को आशीषित किया क्योंकि उसके घर में वाचा का संदूक In था। other words, Obed-Edom honored God by taking his presence into his house. और दूसरे शब्दों में हम देखें तो ओबेद-एदोम ने परमेश्वर का सम्मान किया उसकी उपस्थिति को अपने घर में लेकर जाकर, And because he honored God, God ensured that all his needs were met. और उसने परमेश्वर का सम्मान किया, इसी कारण परमेश्वर ने देखा कि उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया So the जाए। king hears about this. तो राजा इसको सुनता है And the king says, wait, hold on a minute. और राजा कहता है कि तुम रुको, I want to bring the Ark of God back to the city of David. मुझे दाऊद के शहर में वो वाचा के संदूक को लौटा ले आना And when है। I bring it, I'm not going to just बring it. और जब मैं उसे लेकर आऊं तो मैं ऐसे ही नहीं लेकर आऊंगा, I am going to celebrate God's presence in the streets. और वो रास्तों में मैं परमेश्वर के उपस्थिति को उत्सव से मनाऊंगा। So look what happens. तो हम देखते हैं क्या होता है। The Bible says that David sets out with the people to bring the Ark of God's covenant और back. बाइबल कहती है कि दाऊद जो है वो अपने लोगों के साथ बाहर निकला परमेश्वर की वाचा के I संदूक want you को to लाने के लिए। listen to me very closely. मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से I'm going to सुनें। share something very interesting about David. बहुत दिलचस्प चीज मैं दाऊद के बारे में So बताऊंगा। the Bible says बाइबल कहती है that David went out with the people, दाऊद अपने लोगों के साथ बाहर गया, and after every 6 steps that they would take, और हर एक 6 कदम जो वो लेते थे उसके बाद they would stop वो रुकते थे and they would offer a sacrifice to God. और वो परमेश्वर के लिए एक बलि को चढ़ाते थे। So as I was preparing, I asked the Lord, Lord, what is the significance? और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं परमेश्वर को कह रहा था कि इसका अर्थ क्या है प्रभु। The Holy Spirit said, look at David. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम दाऊद को देखो, He was so much in tune with God और वो परमेश्वर के साथ इतना मिला जुला हुआ था that he understood that after the 6th step comes a time of rest. कि उसने जाना कि हर एक 6 कदम के बाद जो है वो आराम का समय In आता है। the old covenant, पुराने नियम में after the 6th step, David rests and sacrifices to God, honoring the Sabbath even with his steps. और 6 कदम चलकर जो दाऊद है वो आराम करता था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था और शब्बात को वो मनाता You know, था। the cost to honor God और परमेश्वर का सम्मान का जो कीमत है is not only what you bring before him, but your attitude when you bring it before him. केवल उससे नहीं आता जो कि आप परमेश्वर के सामने क्या लाते हैं, परंतु आप किस रीति से आप उससे बर्ताव करते हैं वो भी मायने रखता है। So this man who is very, and another thing, और दूसरी बात, when David walked, जब दाऊद चला
He had taken off his kingly robes. उसने अपने राजा के कपड़े जो है वो उतार दिए He थे, was wearing a linen ephod that the priests of Israel would wear. जो इजराइल का याजक पहनता था वो ऐसे एपोद को पहने हुए था। Now David was not from the tribe of Levi to wear the linen ephod. और दाऊद जो है वो लेवी के कुल से नहीं था एपोद को पहनने के लिए, But look how much he was in tune with God. परंतु आप देखिए कि वो परमेश्वर से कितना मिला हुआ है। Centuries before the apostle Peter wrote that you are kings and priests to God, David recognized that he was ministering to God as a priest. और युगों पहले वो उसने लिखा था कि आप परमेश्वर के लिए याजक हैं, और दाऊद ने उस चीज को स्मरण में रखा। Heaven's secrets are revealed to those who honor God. और स्वर्ग के रहस्य उन पर खुलते हैं जो परमेश्वर का सम्मान You know, करते if you हैं। don't honor God, what will happen is you live your entire life wondering what could have been. और यदि आप परमेश्वर का सम्मान नहीं करते तो आप पूरा जीवन ऐसे बिताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस सोच में। But if you honor God, God will trust you with His deepest और secrets. यदि आप परमेश्वर का सम्मान करें तो परमेश्वर अपने रहस्य आप पर जाहिर So let's करेंगे। look at what's happening in Israel. तो हम देखेंगे कि इजराइल में क्या होता है। David is dancing before the Lord. दाऊद परमेश्वर के सामने नाच और झूम रहा है, And the Bible says that he danced in such a manner that even some of his clothes may have fallen off. और बाइबल बताती है कि वो इस रीति से नाच रहा था कि उसके कपड़े भी गिर रहे थे। He was the king. वो राजा था। You know what a king does? एक राजा क्या करता है? A king commands. एक राजा आज्ञा देता है। There was no reason for David to step out and do anything. और दाऊद को जरूरत नहीं थी कि बाहर निकलकर वो कुछ करे। He could have just sat in that place and commanded, and the ark would have been brought back. वो स्थान में बैठे रहकर आज्ञा दे सकता था और वाचा का संदूक उसके पास लाया जाता। But he honored God by stepping out because he recognized that the King of Kings was now coming. परंतु उसने परमेश्वर का सम्मान किया ये जानते हुए कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आ रहा So the है। Bible says, बाइबल कहती है when his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा she got very upset. वो बहुत नाराज हुई And she said, how can the king of Israel do such a thing? और वो कहती है कि इजराइल का राजा ऐसी चीज कैसे कर सकता है, How can he stop? और वो कैसे रुक सकता है, How can he dance like this on the streets? वो गलियों में ऐसे कैसे नाच सकता है। You know, in this version of the Bible, she calls him a ruffian. और वो इस वर्जन में उसे एक तुच्छ इंसान कहती है, In one of the other versions, she calls him a lowly man. और वो दूसरे वर्जन में हम देखें तो वो उसके असम्मानित मनुष्य कहती है। But look at what David says. परंतु देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है। I am willing to become even more undignified than this before my और God. दाऊद कहता है कि मैं और इच्छुक हूँ इससे अधिक तुच्छ होने के लिए मेरे परमेश्वर के लिए। His wife tells him the maids are going to look at you and say you are shameless. और उसकी पत्नी कहती है कि सेविकाएं देखेंगी और कहेंगी तू निर्लज्ज है। But look what David says. परंतु दाऊद क्या कहता है? David says, those maids whom you are talking about, in their eyes I will have honor because I honored God. और दाऊद अपनी पत्नी से कहता है कि जिन दासियों के बारे में तू कहती है कि उनके नजर में मैं और अधिक सम्मानित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूँ। Don't let someone else's opinion of you change the way you honor God. और किसी और की राय आपको होने ना दे कि आप परमेश्वर का सम्मान उस रीति से करें। You want to listen to a secret? आप एक रहस्य को सुनना चाहते हैं? David understood दाऊद ने जाना that those who are willing to demean themselves before the Lord जो कोई अपने आप को परमेश्वर के सामने तुच्छ करता है will always see the Lord destroy dynasties to put them in place. वो देखेंगे कि परमेश्वर उनके शत्रुओं को जो है वो हराएगा। I'm saying this again. फिर से मैं कहूंगा, David understood दाऊद ने ये जाना that those who are willing to demean themselves before the Lord जो कोई अपने आप को परमेश्वर के सामने तुच्छ या नीचा करता will है see the Lord take away dynasties to install them in their place. और वो देखेंगे कि परमेश्वर दूसरों को हटाकर उन्हें उस स्थान में वो You know, बसाएंगे। some of you in this place, आप में से कुछ लोग जो इस स्थान में हैं, as you honor God, जैसे आप परमेश्वर का सम्मान I करते can हैं almost sense it. और मैं देखता हूँ There are boardrooms with your names written. और ऐसे बोर्ड रूम है जिसमें आपका नाम लिखा There हुआ are है chairs in rooms that you haven't even imagined where you will sit. और कमरों में ऐसे चेयर है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है। God is going to lift you up when you honor Him. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा जब आप
उसका सम्मान करेंगे। Because God is literally searching for people. Oh, look, that's a person who honors me. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है जो उसकी सम्मान करते हैं। If you stand to honor God in your generation, यदि आप अपनी पीढ़ी में खड़े रहकर परमेश्वर का सम्मान करते हैं, God will establish the generations that come out from you. और परमेश्वर उन पीढ़ी को रचेगा जो आप में से निकलेगी। We have David's life as an example. और दाऊद का जो जीवन है एक उदाहरण के David लिए हम देखते हैं। honored God. दाऊद ने परमेश्वर का सम्मान किया David stood for God. और दाऊद परमेश्वर के लिए खड़ा रहा David did everything to please God. और दाऊद ने हर एक चीज की जो परमेश्वर को खुश करती Look है। what God does. और देखते हैं परमेश्वर क्या करता है। God not only establishes his kingdom while he is alive, और परमेश्वर ने उसके राज्य को ही स्थापित नहीं किया, but God establishes David's kingdom forever when Jesus is born. परंतु परमेश्वर ने दाऊद के राजा को सदा के लिए स्थापित किया जब यीशु जन्म लेता है तभी भी। Because the book of Isaiah records that the scepter will not depart from the house of David. क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा गया है कि दाऊद राजा के जो कुल है उससे कभी भी वो राज्य नहीं लिया जाएगा। One man who chose to honor God एक मनुष्य जिसने परमेश्वर का सम्मान करना चाहा, saw an entire generation chosen by तो God. उसकी सारी पीढ़ी जो है वो परमेश्वर से चुनी गई। Is there someone in this place that can say, I will stand on behalf of my generation? क्या कोई ऐसा है जो कहे कि मैं अपने पीढ़ी के बदले में खड़ा Is there रहूंगा? someone who can say that I do not care what the cost is, I will honor God? क्या कोई है जो कहे कि चाहे कोई भी कीमत करनी पड़े मैं परमेश्वर का सम्मान करूंगा? I want to tell you this, don't look to people. मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों की ओर ना देखें। The same people who lift you up today will be the first persons to pull you down tomorrow. जिन्होंने आज आपको ऊंचा उठाया वो ही कल आपको नीचे गिराएंगे। But when God gives you a place of honor, परंतु जब परमेश्वर आपको सम्मान का स्थान देता there's है, no power of hell that can take it away from और you. नरक की कोई ताकत उसको आपसे नहीं ले सकती। I want this house to be a house of people who choose to honor God. और मैं चाहता हूं कि ये घर वो घर बने जो परमेश्वर का सम्मान करे। But how do you get honor from God? परंतु आपको परमेश्वर से सम्मान कैसे मिलेगा? Humility. विनम्रता से। Humility is the key, the नम्रता foundation of honor. नम्रता वो कुंजी है, वो नींव है सम्मान की। The Bible says बाइबल कहती है that before destruction, the heart of a man is haughty, नाश होने के पहले मनुष्य के हृदय में घमंड आता है, but before honor is humility. परंतु सम्मान पाने के पहले वो नम्र होता है। Before honor is humility. सम्मान पाने के पहले वो नम्र होता है। I love what the Message version says. और मुझे पसंद है मैसेज वर्जन क्या कहता It है। says pride first, और घमंड पहले then comes an immediate crash. और फिर नाश आता है, But humility is the precursor to honor. परंतु नम्रता ही जो है वो सम्मान को लाती है। Nothing attracts heaven's attention faster than a man or a woman who is humble before the Lord. और एक मनुष्य या स्त्री जो नम्र है वो ही स्वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित You know, करती some है। people think that humility will take you to the back of the line. और कुछ लोग सोचते हैं नम्र होना जो है आपको बहुत पीछे ले जाएगा, That if you are humble, someone else will go ahead of कि you. शायद आप यदि आप नम्र है तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा। But if you are humble, परंतु यदि आप विनम्र है, the नम्र है, God of Abraham, Isaac and Jacob will take you to the front of the line. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपको आगे की ओर He's बढ़ाएगा। not interested in proud people. वो घमंडी लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता। You know why? क्यों? Because humility is one of the characteristics of Jesus Christ. क्योंकि नम्रता यीशु के चरित्र का भाग है। That is why the Bible says that Jesus humbled himself. इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने आप को नम्र किया And he humbled himself to the point of death. और उसने अपने आप को मृत्यु की छोर तक नम्र रखा। And I love what that verse says. और मुझे पसंद है कि आयत क्या कहती है। It says Jesus, who was in the very form of God, did not consider it robbery to be made equal with God. और यीशु जो परमेश्वर के स्वरूप में था उसने उस चीज को ऐसे तुच्छ नहीं जाना, But he chose to become like a lowly servant. परंतु उसने चुना एक वो नम्र सेवक या दास बना रहे। And then, और फिर because of his act of humility, उसके नम्रता के कार्य के कारण, because of his act of obedience, उसकी आज्ञाकारिता के कारण, his father, उसके पिता ने, your father, आपके पिता my ने, father, मेरे पिता the ने, God of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर has ने now given him the name that is higher than every other आप name. उसे वो नाम दिया है जो सारे नामों से
ऊंचा नाम है। You know what happens because he was humble? और वो नम्र था, इस कारण क्या हुआ? Imagine this. आप इसकी कल्पना करें, God, Jesus Christ walking on earth. और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, The one who made it all. और जिसने सब चीजों की रचना की है, The one who was in Genesis 1. जो उत्पत्ति पहले में से था, The one who was in John 1 verse 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. जो यूहन्ना 1:1 में था कि आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। This God ये in परमेश्वर human form एक मनुष्य रूप में is being led like a criminal to be crucified. एक गुनहगार के रूप में उसे लेकर जाया जा रहा है क्रूस पर चढ़ाने के लिए, But he kept quiet. परंतु वो चुप रहा, And because he kept quiet, और वो शांत रहा, इस कारण today he is exalted. आज उसकी महिमा की जाती है। That is why today when we take his name, situations change. इसलिए आज जब हम उसका नाम लेते हैं तो परिस्थिति बदलती You know, है। that is why when we take his name, things happen. इसीलिए जब हम उसका नाम लेते हैं तो चीजें पूरी होती हैं। I'll also tell you another secret. और एक दूसरा रहस्य मैं आपको बताता हूँ, Humility comes from God, नम्रता जो है वो परमेश्वर से आती है, but pride comes from Satan. परंतु घमंड जो है वो शैतान से आता है। Humility comes from God. नम्रता परमेश्वर से आती है, Pride comes from Satan. घमंड शैतान से आता है। Jesus humbled himself. यीशु ने अपने आप को नम्र किया, Satan exalted himself. शैतान ने अपने आप को ऊंचा उठाया। Jesus humbled himself, so he got exalted. यीशु ने अपने आप को नम्र किया, इसीलिए उसे ऊंचा उठाया Satan गया। exalted himself, so he got cast down. शैतान ने अपने आप को ऊंचा उठाया, इसीलिए उसे नीचा किया गया। Pride in a man or a woman will kill that person's destiny. मनुष्य या स्त्री में यदि घमंड है तो उसके भाग्य का वो नाश करती है। It will absolutely destroy God's plan and purpose for you. वो परमेश्वर का उद्देश्य जो आपके लिए है उसका नाश कर देती है, It will destroy everything that God has planned for you. और हर एक चीज जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए की है वो उसका नाश कर देती है। Remember that God is not calling a people who are wanting to be proud, और याद रखें, परमेश्वर उन लोगों को नहीं बुला रहा जो घमंडी हैं, but God is looking at people who परंतु- can be humble before Him. परंतु परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जो उसके आगे नम्र हो सकते हैं। And I want to declare over this church, और इस कलीसिया पर मैं घोषणा करता हूँ, this church will not entertain a proud spirit. ये कलीसिया जो है घमंड की आत्मा का नहीं दिलचस्प लेगी। You know what we'll do? हम क्या करेंगे? We'll stand at the door and cast it out. और हम दरवाजे पे खड़े रहकर उसे बाहर निकालेंगे। No proud spirit is welcome in this place, कोई घमंड की आत्मा का इस स्थान में स्वागत नहीं है, because humility is heavenly. क्योंकि नम्रता जो है वो स्वर्ग से आती है। But now the question is, परंतु प्रश्न है, how does one become humble to begin with? एक इंसान नम्र कैसे हो? How does one become humble? एक इंसान नम्र कैसे हो? And what is humility? और नम्रता क्या है? Is humility being quiet when someone else talks? और नम्रता क्या ये है कि जब दूसरे बात कर रहे हैं तो शांत रहना? Look at me. आप मेरी ओर देखें। Is humility walking like this in front of someone else? और नम्रता क्या ऐसा है कि दूसरे के सामने आप झुककर चले? Is humility saying nahi? Is that humility? क्या ये नम्रता है? अरे उन्होंने किया. ऐसे हम बहुत झुककर बातें करें तो? We all know some people like this. और हम सभी लोग ऐसे लोगों को जानते हैं। If that is humility, यदि ये नम्रता है that is not biblical. तो ये बाइबल से नहीं। Some of the proudest people और कुछ घमंडी लोग can pretend to be the most humble. वो दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि वो बहुत विनम्र हैं, That is false humility. और वो झूठी नम्रता है। See, God is not looking for actors. और परमेश्वर जो है वो ऐसे कलाकारों को नहीं देख रहा। You know, lights, camera, action, church में आया humble. If some of you are laughing at someone else, it's fine. But if this is convicting you, praise God. और यदि आप में से कुछ लोग किसी और पे हंस No, रहे I'm हैं, joking. ठीक है। There's no one in this place that is like that. Amen. You know, if you come into this place and you pretend to be humble, यदि आप इस स्थान में आए और आप नम्र हैं, ऐसे आप दर्शाते हैं तो I often tell Pastor Sujan, मैं हमेशा पासवान सुजा से कहता हूँ, one of the quickest ways to know the test of a Christian एक अच्छे मसीह की परीक्षा ये है, is to put that person in the driver's seat of a car. आप उसे ड्राइवर की सीट पे बैठा दे कार में।
If you can show Christ's love when you are driving, यदि आप जब गाड़ी चला रहे हैं, यदि आप मसीह के प्रेम को आप दर्शा पाए तो then you have understood what the gospel is all about. फिर आप जान पाएंगे कि सुसमाचार क्या है। Imagine a scenario. आप कल्पना करिए एक दृश्य, Someone cuts you off. कोई तो आपसे आगे बढ़ गया है, You roll your window down आप अपनी खिड़की को नीचे करते हैं and you go like, "Arey!" और फिर आप बोलते हैं, That person turns to you. फिर वो मनुष्य आपके पास आता है, Praise the Lord, brother. वो कहता है कि प्रभु की स्तुति हो भाई, What do you do? आप क्या करेंगे? If I were you, I would not only go to another church, I would shift the city also. और यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं दूसरी कलीसिया में जाता, मैं शहर ही बदल देता। God is looking at people who are genuinely humble. और परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जो सच में नम्र है। How do we see what is godly humility? हम कैसे देखेंगे कि परमेश्वर या ईश्वरीय नम्रता क्या है? How do we distinguish it from false humility? हम कैसे भेद करें झूठी नम्रता से? False humility honors myself more than God. और झूठी नम्रता जो है वो अपने आप को सम्मान करती है, परमेश्वर को नहीं। I'll call on people, look at me, I am so humble. और मैं लोगों को कहता हूँ कि देखो मैं कितना नम्र हूँ। उसने मुझे ये बोला, but I kept quiet. उन्होंने मुझसे ये कहा परंतु मैं शांत रहा। You know, they troubled me, but I still kept quiet. उन्होंने मुझे सताया परंतु मैं फिर भी शांत रहा। All you're doing is you're praising yourself. आप क्या करते हैं? आप अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप की महिमा करते हैं। But godly humility परंतु ईश्वरीय नम्रता takes the attention away from you अपने आप से उस ध्यान को हटाती है and it takes it to Jesus. और वो यीशु की ओर आकर्षित करती है। Humility that doesn't honor Jesus is not biblical. और नम्रता जो यीशु का सम्मान ना करे वो बाइबल से नहीं आती है। Now you'll say, give it to me from the scriptures. और आप कहेंगे आप वचन से हमें बताएं। Very well. Luke 18. लूक उसका 18वां अध्याय। We see the story of two men who went to pray. और हम देखते हैं दो मनुष्य के लिए जो प्रार्थना करने गए। One, the Bible says, was a Pharisee और पहला जो एक फरीसी था and one was a tax collector. और दूसरा जो है वो कर लेने वाला था। And in the olden days, tax collectors were considered to be absolutely horrible people because of the corruption that existed. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो कर लेने वाले थे उन्हें बहुत ही खराब ऐसा व्यक्ति कहा जाता So था। let's bring it to modern standards and change their roles up a little. और अब के समय में हम लेकर आते हैं उनके किरदार को हम बदलते हैं। The Pharisee would be a regular church goer, और जो फरीसी है वो एक नियमित कलीसिया में जाने वाला मनुष्य हो, doesn't miss church on any Sunday, कोई भी रविवार को कलीसिया को नहीं मिस करता comes very early. और बहुत जल्दी आता If है। someone else is late, goes and says, late क्यों आया? और दूसरे लेट हो तो कहेंगे कि आप देरी से क्यों आए। Okay? But the other one परंतु दूसरा जो है is a sinner वो एक पापी है who doesn't know anything, जिसे कुछ नहीं पता just knows that I am not worthy. और वो केवल ये जानता है कि मैं योग्य नहीं। So both these men one day go into the temple to pray. और दोनों ये जो मनुष्य है मंदिर में जाते हैं एक दिन प्रार्थना करने के लिए। And the Pharisee says, God, you know, I am so thankful that I am not like this sinner over here. और वो फरीसी कहता है कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस पापी मनुष्य के समान में नहीं। I am so grateful to you that I am not like this person. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं इस मनुष्य के समान नहीं। Amen. आमेन। And the sinner, और पापी जो है the Bible records in Luke 18 लूक 18 में हम देखते हैं बाइबल कहती है that the tax collector could not even look up to God. वो जो कर लेने वाला है वो परमेश्वर की ओर अपने मुख को भी नहीं उठाता। He just closes his eyes, वो अपनी आंखों को बंद रखता है, keeps his head down, अपने सिर को झुकाए रखता है beats his chest, और अपने हृदय को वो पीटता है and he says, God, be merciful to me because I am a sinner. और वो कहता है परमेश्वर मुझ पर दया करे क्योंकि मैं पापी हूँ। He didn't make excuses for what he did. उसने बहाने नहीं बनाए जो किया उसने उसका। He didn't blame someone else for his actions. उसने अपने कार्यों के लिए किसी और पर इल्जाम नहीं लगाए। He chose to be quiet in God's presence and say, I need help. उसने चुनाव किया परमेश्वर की उपस्थिति में वो शांत रहे और कहे कि परमेश्वर मुझे आपकी सहायता चाहिए। And the Bible says that he was exalted. और बाइबल बताती है कि उसे ऊंचा उठाया गया Because God looked and God said he was more justified. क्योंकि परमेश्वर ने देखा और कहा कि वो ज्यादा न्यायी है। Pride is the surest way to finish off God's plan for your life. और
आपके जो जीवन के लिए जो योजना है वो घमंड के द्वारा वो नाश की जाती है। But humility will ensure that the breakthrough that you have been praying for will come faster. परंतु नम्रता वो देखिए कि जो आपके लिए बेदारी रखी गई है वो जल्दी से आपके जीवन This में is what आए। it says in James 4 verse 6. याकूब 4:6 में हम देखते हैं The Bible says he pours out grace upon grace on the humble. और वो बाइबल बताती है कि वो नम्र लोगों पर अपने अनुग्रह को उंडेलता है Because he welcomes the humble. क्योंकि वो जो है नम्र लोगों का स्वागत करता He है, protects them. वो उनकी रक्षा करता He है, defends them. वो उन्हें बचाता है। But if you are proud, परंतु यदि आप घमंडी हैं, God will not defend you. परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेंगे। The Bible says God will fight you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपसे He will लड़ेंगे, resist you. वो आपका नकार करेंगे। I want this church to be a church that understands what biblical humility is all about. और मैं चाहता हूँ कि ये कलीसिया वो कलीसिया बने जो जाने कि बाइबल से नम्रता क्या है, उसका अर्थ वो जाने, And understand that humility is the biggest foundation for your honor. और नम्रता जो है वो आपके सम्मान की जो है नींव है। And my last point this morning. और आज की सुबह मेरा आखिरी मुद्दा, God is not honored by anything which is outside His will. और परमेश्वर की इच्छा के बाहर जो चीज है उससे उसका सम्मान नहीं किया जा सकता। God is not honored by anything that is outside His और will. जो चीजें परमेश्वर की इच्छा के बाहर है उससे उसका सम्मान नहीं किया जा सकता। Matthew 7:21 tells us मत्ती 7:21वां वचन कहता है that not everyone on the day of judgment who says Lord, Lord will enter into the kingdom. और न्याय के दिन हर एक जन जो कहे प्रभु प्रभु वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Look at what the scripture is saying. और देखिए वचन क्या कहता है, The scripture is saying not everyone who says Lord will enter. और वचन कहता है कि हर एक जन जो प्रभु कहता है वो प्रवेश नहीं So करेंगे। in other words, these people know about Jesus. और दूसरे शब्दों में कहे तो ये लोग जो है यीशु के बारे में जानते They हैं, know that Jesus is Lord. और वो जानते हैं यीशु प्रभु And है। what do they tell Jesus? और वो क्या कहते हैं यीशु They tell से, Jesus, Lord, you know what we've done? We've healed people in your name. We've cast out devils in your name. We've preached the gospel to someone. और वो यीशु से कहते हैं कि यीशु हमने आपके नाम में लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। But Jesus looks to them परंतु यीशु और उनकी ओर देखता and है He says, Get away, you workers of iniquity. और वो कहता है कि तुम दुष्ट कार्य करने वाले लोग मुझसे दूर हो जाओ, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता। Matthew 7:21 says that the password or the key to enter heaven is to do the will of God. मत्ती 7:21 कहता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने की कुंजी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। You know, a lot of times what happens is कई बार क्या होता है, we live life however we want. हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं, And then we wonder why God is not blessing us. और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष नहीं दे रहा। We do things that are contrary to the word of God. जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है उन चीजों को हम करते हैं, We do things that the Bible prohibits us from doing. और जो बाइबल कहती है जिन चीजों को हमें नहीं करना है उन्हीं चीजों को हम करते Our हैं। life, in fact, if I can say this and I say this with humility, और पुनः नम्रता के साथ मैं आपसे कहता हूँ, some people's lives, even the world will look and say, बाप रे, बहुत बड़ा sinner है. और कुछ लोगों का जीवन ऐसा है कि वो दूसरों को देख के कहता है कि बहुत बड़ा पापी नहीं, है। दुनिया उनको देख के बोलेगी कि बहुत बड़ा पापी हाँ, है. दुनिया उनको देखकर कहती है कि ये बहुत बड़ा पापी है। God will never honor something that is outside His will. प्रभु उन चीजों का सम्मान नहीं करता जो उसकी इच्छा के बाहर है। God doesn't honor that. परमेश्वर उनका सम्मान नहीं करता। You cannot walk outside the umbrella of the word of God. आप परमेश्वर के वचन की छतरी के बाहर नहीं चल सकते। I'm saying this again, listen to me. अब मैं दोबारा कहता हूँ, आप सुने। You cannot walk outside the umbrella of the word of God and wonder why the muck and slime of sin is upon you. और परमेश्वर के वचन के छत्र छाया से आप बाहर होकर आप नहीं सोच सकते कि क्यों दुष्ट चीजें मुझ पर हैं। If you do things that are contrary to God's word, यदि आप उन चीजों को करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं, you will never have heaven's stamp of approval. आप कभी भी स्वर्ग का जो अप्रूवल नहीं पा Be सकते। careful what you speak. ध्यान रखें कि आप क्या कहते हैं। Be careful what you speak about someone else. ध्यान रखें कि आप दूसरों के बारे में क्या कहते हैं। You know, the day people realize और जिस दिन लोग ये जाने that gossip hurts God चुगली करना जो है वो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है, is the day that a lot of people will break up friendships. उसी दिन जो है जब बहुत से लोग अपनी मित्रता को तोड़ देंगे।
We do not entertain gossip in this church. इस कलीसिया में हम चुगली को प्रोत्साहन नहीं देते, We do not entertain it at all. हम उसको प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं देते। Learn to honor God with your words. अपने शब्दों से परमेश्वर का सम्मान करना सीखे, Honor God with your words. अपने शब्दों से परमेश्वर का सम्मान करना If you सीखे। hear someone gossiping about another brother or sister, यदि आप सुने कि कोई और किसी भाई बहन के बारे में चुगली कर रहा है, stop them. आप उसे रोके, Because if you do not stop them, क्योंकि यदि आप उन्हें नहीं रोकेंगे you are an equal participant in gossip. तो आप उसके साथ चुगली में शामिल हैं। Now, some of you are thinking, "Arey, but gossip? What is wrong?" परंतु आप में से कुछ सोच रहे हैं कि चुगली करने में क्या बुराई है, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं तो केवल जानकारियां दे रहा हूँ। प्रेस में हो, मीडिया में काम करते हो। Listen to what I'm saying. आप सुने मैं क्या कहता हूँ। Another word for gossip चुगली के लिए दूसरा शब्द है is slander. बदनामी। Slander. बदनामी। Now listen to this. आप सुने, The word slander जो शब्द है बदनामी in the Greek, यूनानी भाषा में in the original text of the Bible, और बाइबल के सरल भाषा में has the root word diabolos, which means devil. इसका अर्थ है डियाबोलस, इसका अर्थ है दुष्ट या शैतान। One of the characteristics of Satan is that he is a slanderer. और शैतान का एक चरित्र ये है कि वो बदनामी करता है, The devil is a slanderer. और शैतान बदनामी करने So वाला है। when you slander men and women of God, तो जब आप परमेश्वर के दास दासी की बदनामी करते हैं, when you slander people of God, जब आप परमेश्वर के लोगों की बदनामी करते हैं, all you are doing is you are doing the devil's work. तो आप क्या करते हैं? तो आप एक दुष्ट का, शैतान का काम आप कर रहे हैं। Now some may say, "Arey, but I didn't speak. तो आप में से कुछ कहेंगे कि अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा, They came to my house, they started speaking." वो मेरे घर आए, उन्होंने कहना शुरू किया। Yes, but you did not ask them to leave. हाँ, परंतु आपने उनसे जाने के लिए नहीं कहा। If your walls of the house are not soaked with the atmosphere of heaven, God's presence does not come down. यदि आपके घर के दीवार जो है वो स्वर्ग से ऐसे नहीं बने हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में नहीं आती। If you entertain gossip in your house, I am telling you, write this down. यदि आप अपने घर में बदनामी को प्रोत्साहन देते हैं, तो Your breakthrough that was at the door will take a U-turn and walk away. तो आपकी बेदारी जो आपके दरवाजे पे खड़ी थी वो आपसे दूर चली जाएगी, Because you have opened a door in the spirit realm. क्योंकि आपने आत्मिक क्षेत्र में एक दरवाजे को खोला है, And that doesn't honor God. और वो परमेश्वर का सम्मान नहीं करती। Be careful of those who gossip about others with you. ध्यान रखें उन लोगों के बारे में जो दूसरों की चुगली आपसे करते हैं, Be careful about those who gossip about others with और you. जो दूसरों की चुगली करते हैं उनके ऊपर आप ध्यान रखें। You know why? क्यों? Today, आज they're talking about someone else with you. आज वो किसी और के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, Tomorrow, you will be the topic of another conversation. कल आपका जीवन मुद्दा होगा दूसरों के साथ चुगली करने के लिए। God is not honored. परमेश्वर इसे सम्मानित नहीं होता। And if you ask me, और यदि आप मुझसे पूछें, I'm telling you, you have complete permission to stop anyone who comes to your house to मैं gossip. आपसे कहता हूं कि आपके घर आने वाले हर एक जन को आप रोक सकते हैं जो आपके पास चुगली करने के लिए आते Stop हैं। them at the door and say, if you are coming to talk about God, we will talk, otherwise let's not. उन्हें दरवाजे पे रोके कि यदि आप परमेश्वर के बारे में कहने आए हैं तो आप आइए, दूसरों के बारे में आप कहने आए तो आप नहीं आ सकते, Because this is not a church that engages in gossip. क्योंकि ये वो कलीसिया नहीं जो चुगली से This is not a church that believes someone else should be brought down. और ये वो कलीसिया नहीं जो दूसरों को नीचा करती है। This is not a church that says, let's talk about men and women of God. और ये वो कलीसिया नहीं जो परमेश्वर के दास दासियों के बारे में बात In करती fact, है, completely opposite. परंतु इसका विपरीत है। This is a church that respects men and women of ये वो God. कलीसिया है जो परमेश्वर के दास दासी का सम्मान करती This is है। a church that honors men and women of God. ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर की स्त्री और मनुष्य का सम्मान This is करती a है। church that honors brothers and sisters who are here. ये वो कलीसिया जो यहाँ मौजूद भाई बहन का सम्मान करती
बनती You है। know what sets us apart as a people? और परमेश्वर के लोग नहीं कहते हमें ऐसे क्या अलग रखता Is है। that the Bible says that God walks among us. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे संग चलते हैं। And this is a church that understands not only how to honor God but also how to honor people. और ये वो कलीसिया है कि वो केवल ये नहीं जानती कि कैसे परमेश्वर का सम्मान करना है, परंतु लोगों का सम्मान कैसे करना है वो ये भी जानती है। And if you honor God, यदि आप परमेश्वर का सम्मान if करें you तो, walk according to His word, यदि आप उसकी वचन के अनुसार चले तो, I just want to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Obedience to the word of God will bring down the blessings of God. परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन उसकी आशीषों को लेकर आता है। You know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? That if you obey God's commands, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें तो, God is going to take you away from the line. और परमेश्वर जो है उस रेखा से आपको लेगा, कतार, वो आपको कतार से हटाएगा. He's going to take you away from a line. और वो उस कतार से आपको हटाकर, The line that is standing to receive. मुझे दे, मुझे दे, और मुझे जो दे. कतार लगी हुई है कुछ पाने के लिए, And you'll be seated with the lenders. और आप देने वालों के साथ आप बैठे Because होंगे। Deuteronomy 28 says that you will lend to nations and you will not borrow. क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में कहा गया है कि आप बहुत तेरे को दोगे परंतु आप किसी से लोगे नहीं। In this world, इस संसार में everyone loves to see मुझे क्या मिलेगा. और सभी लोग चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, But God is telling you that your time has come where God is elevating you to a position of a giver. और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपका समय आ गया है कि आपको उस स्थान में लेकर आए जिस स्थान से आप दे सकेंगे। There is honor coming in this इस place. स्थान में सम्मान आ रहा है। God is releasing honor over this church. परमेश्वर इस कलीसिया पे सम्मान को दे रहा है। You know, God is elevating this church to the next level. और परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचे स्तर पर लेकर जा And रहा He's है। taking each of you to the next level. वो आप में से हर एक को ऊंचे स्तर पर And लेकर in जा this रहा है। level, as you fly with the eagles, और इस स्तर पर जैसे आप उकाब की नाई उड़ते हैं, I don't want you to get distracted by the sounds of the crows. और मैं नहीं चाहता कि आप कौवों की आवाज से आप यहाँ वहाँ भटके। You know, when eagles fly, जब उकाब उड़ता है they soar. वो ऊंची उड़ान भरते They're हैं not concerned नीचे कौवा क्या बोल रहा है. और वो नहीं देखते कि नीचे कौवे क्या कह रहे हैं। Don't get stuck with gossip. और आप चुगली के साथ बंधे ना रहे, Let God take you to the next level of your destiny. और परमेश्वर आपके भाग्य के ऊंचे स्थान में आपको ले